آج کلام کی وجہ سے سب کی برکت دے. ہاللیلویا. کلام کیوں سننا ہوتا ہے؟ تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہم سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر کریں. اور اگر ہم اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے تو فائدہ کرنے ہے. یقین جانے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام نہیں سنتے جس کے باعث بہت سارے لوگ ہمیں بالکل گمراہ کر دیتے ہیں اور بولنے میں سارے سچے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں سچائی کی پہچان نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہمیں سچائی کی پہچان ہوگی تو شاید ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے بلکہ درست چیز کو اور درست عنوان کو درست کلام کو سن کر ہی آمین کہیں گے. ہاللیلویا. آئیں میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیں. مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط ہے. یوحنا کا خط ہے پہلا باب اس کا چوتھا 4 باب. اب چوتھے باب کی میں پہلی ہی آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کو کروں گا. ذرا توجہ کے ساتھ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں خدا کے کلام کو سنیں. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے عزیزو. کیا لکھا ہے جی؟ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. اے عزیزو ہر ایک روح کا بلکہ روحوں کو آزماؤ. ایسے جو ہر ایک روح کا یقین بلکہ روحوں کو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. ایسے جو ہر ایک روح کا یقین بلکہ روحوں کو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو. ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا روح جس کے اندر ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا, اس کی پہچان کیسے ہے, کیسے لوگ اس کو جانچ لیں گے, کیسے لوگ اس کو پرکھ لیں گے. خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ہم نے ہر ایک روح کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا بلکہ ہمارا سر اگر جھکے گا یا کسی چیز کو ہم تسلیم کریں گے تو وہ صرف ایک ہی ہے, خدا باپ, خدا بہتر, خدا پاک. ہاللیلویا. کہتا ہے زندو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روح کو سارے بولے روح کو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. کہتا ہے روحوں کو تم اس طرح پہچان سکو گے. کس طرح؟ کیا خدا کے کلام میں کوئی نشاندہی ایک طرح کی گئی؟ کیا خدا کے کلام میں سے کوئی پہچان دی گئی ہے کہ جس کو ہم پڑھ کر کے سن کر ایمان لائیں کہ یہ روح درست ہے اور یہ روح درست نہیں ہے. خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ہر بائبل پکڑنے والا خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر ایک کلام کو رٹے مار مار کے سیکھ کر سنانے والا خدا کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے کلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے خدا کے روح کی پہچان ہوتی ہے, جس سے پہچانا جاتا ہے کہ کون خدا کا ہے اور کون خدا کا نہیں ہے. ہاللیلویا. پڑھتے ہی اگر جب ہم شروع کرتے ہیں خدا کے کلام کو پڑھنا تو پڑھتے ہی ہمارا ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. میں بھی یہ کرتا ہوں کہ یہ مسیح یسوع کا کلام ہے, خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. اور خدا یسوع مسیح جہاں جہاں بولتے تھے کلام کے اندر لکھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن مسیح یسوع پتہ کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولتے تھے. ہاللیلویا.
जब ज़हनों को खोलते थे तो लोग खुदा के कलाम को सुनना और समझना शुरू कर देते थे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ज़िन्नो हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को क्या करो, आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। अब कोई किसी के पास आजमाने का टाइम हो या ना हो, किसी के पास परखने का टाइम हो या ना हो, ये नहीं कि हर एक रूह का यकीन करे। बेशुमार लोगों ने बाइबल मुकद्दस को हाथ में पकड़कर बेशुमार लोगों को गुमराह किया है। बेशुमार लोगों ने बाइबल को पकड़कर लोगों को जिंदगी से निकालकर मौत के हवाले किया है। इस वजह के साथ सुने कि आज खुदा का कलाम वैसे तो बहुत वसी, ये जो मैं इनवान पेश कर रहा हूँ बड़ा ही बहुत बड़ा है, लेकिन चलो थोड़े वक्त में कम से कम अगर एक बात मैं समझा पाऊँ तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा खुदा की हुजूरी में बैठना हमारे लिए बाबरकत होगा। हालेलुया। चलो पढ़ते हैं कि कैसे पहचान होती है खुदा के रूह की या खुदा के लोगों की। जी तीसरा बात, इसी हद का तीसरा बात, उसकी 10वीं से मैं पढ़ूंगा। सुने क्या लिखा है, इसी से खुदा के फरजांद, क्या लिखा है कि इसी से खुदा के फरजांद और इब्लीस के फरजांद ज़ाहिर होते हैं। खुदा के फरजांद भी ते इब्लीस के फरजांद भी, कहते इसी से खुदा के फरजांद और इब्लीस के फरजांद है ज़ाहिर किससे। आगे सुने, कहना जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता, जो कोई वो खुदा से नहीं, जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो। अब हम जो कुछ मर्जी समझे, साफ लिखा है कि जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। हम बेशक उसको अपने हाथ से लिखकर सर्टिफिकेट दे दे कि ये खुदा की तरफ से है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये साफ साफ बिल्कुल वाज़ेह करती है, ज़ाहिर करती है कि जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। और अगर वो खुदा से नहीं तो किससे है, कहते इसी से खुदा के फरजांद और इब्लीस के फरजांद ज़ाहिर होते हैं कि जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, और वो भी नहीं जो अपने वो खुदा से नहीं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो भी खुदा से नहीं है, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, कलाम कहता है कि वो खुदा से नहीं है। ये नहीं कि हम बैठे उठे और चले गए, बल्कि खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह अपने आप को एक दायरा लगाएं, बीच में बैठकर अच्छी तरह पिटोने परखें कि हम खुदा की तरफ से हैं भी या नहीं। ऐसा ना हो कि पूरी उम्र चर्च में बैठने इबादत करने के बावजूद भी हम शरीर के निकले, हम इब्लीस के निकले, और फिर इंजाम भी अजब भी हमें वही मिलेगा जो इब्लीस और उसके फरजंदों को मिलने वाले। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो, और वो कौन खुदा से नहीं है। अगर किसी की त्वचा है तो वो बोले, हाँ जो बिल्कुल गुमराह है ना वो कोशिश करे खामोश रहे, बकाया जो थोड़ा बहुत थका पता कभी बोल सकता है वो बोले। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो, और कौन नहीं उदास है। इस बात को लिख लें अपने दिलों के अंदर, ये बात खत्म है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है सुने, तो के साथ सुने क्या लिखा है। हालेलुया। कहता क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। शुरू से क्या पैगाम सुना है, एक दूसरे से, और कायम की मानित ना बने जो उस शरीर से था। किसकी मानित है, कायम की मानित ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। क्योंकि जो
अपने भाई का कत्ल करता है, अपने भाई का खून करता है, वो शरीर से है। कलाम ने दलील दी है ना कि कौन रास्तबाज है और कौन नाराज, कौन खुदा से है और कौन खुदा से नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की कि खुदावंद के कलाम में से हमें एक दलील मिली है कि कायन की मानंद ना बने। और आज भी बहुत सारे लोग, बेशक उनका नाम कायन नहीं है, लेकिन कायन के सारे असरात उनकी जिंदगी में से नजर आते हैं। और आज तो ऐसे लगता है कि जैसे सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। हालेलुया। कायन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था, जिसने अपने भाई को, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के काम थे। याद रखें कि ना रास्ते का प्रधान और रास्ते का प्रधान, खुदा का प्रधान और इब्लीस का प्रधान, इनमें कभी तालमेल नहीं हो सकती। सदा जो इब्लीस का प्रधान है वो अपने भाई को कत्ल जरूर करेगा, किसी रंग किसी सूरत में वो सामने जरूर आएगा। और आज हम भी अपने आप को यहां से जांच कर अच्छी तरह परख के जाएं कि हम खुदा से हैं या इब्लीस से। क्योंकि जब कलाम होते हैं ना, तो कलाम हमें मौका देता है कि हम अपने आप को अच्छी तरह जांचें और परखें। कलाम वो आईना है जो हमारी असल और हकीकी सूरत हमें दिखा देता है। जैसे कि जिस्मानी आईना जो है, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो वो हमारी सूरत, जैसी हमारी सूरत है, हमें दिखाता है। बल्कि हमारे बिखरे हुए बाल, हमारे संवरे हुए बाल तक आईना हमें दिखा देता है। इसी तरह रूहानी तौर पर हमारे सारे कैरेक्टर को, हमारी सारी सूरत को खुदा का कलाम बिल्कुल सामने ले आता है। और आज खुदा का कलाम हमें इस बात पर समझने का मौका दे रहा है कि हम समझें कि हम खुदा से हैं या इब्लीस से। और खुदा के कलाम के अंदर साफ लिखा है कि जो कोई रास्ते के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं है, और वो भी खुदा से नहीं है जो अपने भाई से, सारे बोले, जो अपने भाई से, वो क्या है, किससे है? शरीर से। अगर कोई कह रहा है इब्लीस से बच्चे आए, शरीर दे शैतान दे बच्चे हैं, तो लोग लड़ पैंगे। दाऊद की शुक्रगुजारी हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि आया हम खुदा के हैं या इब्लीस के। आगे पढ़े लिखे ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे दावत रखती है तो तज्जब ना करो। दुनिया तुमसे दावत रखती है तो तज्जब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। हम जानते हैं कि इसलिए दुनिया अदावत रखती है कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो कहते हैं सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। इससे पहले के रसूल मसीह में आते, उनके दिलों के अंदर भाइयों के लिए मोहब्बत रही थी, लेकिन अब मोहब्बत भाइयों के लिए क्यों आई? क्योंकि अब वो नफरत से निकलकर मोहब्बत में, नाराजगी से निकलकर रास्ते में आ चुके हैं। और जो कोई दुनिया से निकलकर खुदा में आएगा तो उसका सबसे पहला, सबसे बड़ा, लाजवाब और ना तमाम होने वाला जो फल है वो सारा। और वो फल कौन सा है? सारे बोले फल कौन सा है? अगर दुनिया तुमसे दावत रखती है, जी हाँ, दुनिया उसको कबूल नहीं कर सकती जो खुदा का फर्जंद है, किसी कीमत पर भी। दुनिया खुदा के बेटों को, खुदा की बेटियों को तस्लीम नहीं कर सकती। जो खुदा का बेटा होगा, जो खुदा की बेटी होगी, वो दुनिया की रडार पर होगी, दुनिया उससे नफरत रखेगी। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता कि तरीकी और रोशनी का आपस में मेल मिलाप हो, बेईमान का और ईमानदार का आपस में मेल मिलाप हो, खुदा के फर्जंद और शरीर के फर्जंद आपस में रहे। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। जो मोहब्बत नहीं रखता
वो मौत की हालत में रहता है। क्या लिखा जी? यहाँ जितने बैठे किस हालत में हैं? क्या है मोहब्बत? अपने आप को परखे ना। कहता जो मोहब्बत नहीं रखता उसकी हालत ये है कि वो मौत की हालत में है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। हाँ जी, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है हाँ जी, वो खूनी है। जो कोई वो यहाँ कितने खूनी बैठे हुए हैं? क्यों भाई सुनो, खूनी हो कि अपने भरा मोहब्बत रख रहे देखो से खूनी ना निकल आएगा। क्यों जी जैसे कि खूनी बैठा हुआ जो जिसका अपने भाई से नाराजगी है, जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है। ऐसी कितनी लेडियां कितनी बैठी हैं कातल लेडियां कहते जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो क्या है? और पता तो हमें है ना कि हम अपने भाई से मोहब्बत रखते हैं या नहीं। दो चीजें हैं, अंदर हसद है तो मोहब्बत हो नहीं सकती, दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती, ठीक है। और अक्सर हमने देखा है कि दुनिया के दूसरे लोगों से कुछ नहीं होता, कहते हैं वो ना अपने ने उन्होंने लाश रहता। यहाँ कितना खूनी बैठे हुए हैं। खूनी की यह नहीं कि किसी ने छुरा मार छेड़ा होगी या किसी ने गोली मार कर मार छेड़ा जानो नहीं। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है। चाहे जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उसको अपने अंदर नहीं लेते। क्यों जी विकास साहब खूनी हो क्या? हमने अपना मोहब्बत रखते हैं क्या जी? काय माली पर रखने की नहीं है असल पर नहीं सर कहने कि कोई रात कला कोल छे लगे और रात जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है, वो कुछ भी कर सकता है जी। आगे वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं है। बेशक वो चर्च के अंदर पूरी जिंदगी बैठकर इबादत करता रहे, कहता कि किसी खूनी की जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता कम से कम मसीह की बादशाही के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। इसको हमने संजीदगी के साथ लेना है कि कई दफा किसी से थोड़ी सी की हुई हसद की वजह से हम अपनी बादशाही को, अपनी जिंदगी को खो देते हैं। हम किसी से नफरत नहीं काले होते, दरअसल नफरत जो है वो हमें ही काले नाग की तरह डस रही होती है, वो हमें ही हमारी असल ब्लेसिंग से दूर कर रही होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है जो चीज हमें मंजिल पर नहीं पहुंचने देगी। और अगर सबसे पूछा जाए तो सब कहेंगे कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, हम अपनी बहनों से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन जब तरक्की के अंदर रख दिया जाए तो शायद ऐसे लगे कि जैसे सारी दुनिया ही शरीर के कब्जे में है। जी भाई हमने मोहब्बत को इसी से जाना है हाँ जी कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हमने मोहब्बत को किससे जाना है जी? अरे पीछे तक बोले मोहब्बत को किससे जाना है? हम जान देने वाले हैं। वहां तो हमने जाना है कि हमने जाना है कि मसीह की मोहब्बत कैसे मोहब्बत जाना। मैं मोहब्बत करना, मैं मोहब्बत करना, मैं मोहब्बत करना। खुदा की जो देखो मोहब्बत जानना देता तो कोई उस मोहब्बत को समझता ना। रसूलों ने समझा, कहता हमने जाना ही इसलिए कि उसने मोहब्बत ने क्या दे दी है? जान दे दी। जान दे दी है। हम जान देने वाले हैं या जान देने वाले हैं? हालेलुया। सोचने वाली ये बात है ना कि एक कायन है जो अपने सगे भाई को हालेलुया क्या कर देता है? क्या कर देता है? देखो ना तुम हिसाब ला लो ना कि जिन्हें जो खुदा नहीं वो किसी का भरा नहीं। ये बात पक्की है, जिसके अंदर खुदा नहीं वो किसी का भरा नहीं कह सकते। जिसके अंदर खुदा नहीं वो किसी का भी भरा नहीं, ठीक है। वजह ये है कि कहते हैं नहीं ऐसे सच्चे भरा हो कि नहीं सच्चे भरा नहीं।
खुदा की शुक्रगुजारी हो, दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। कायन ने अपने सगे भाई जो उसकी मां के पेट से उसके बाप के सुलग से पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया। मैं जा रहा था किसी गाड़ी के पीछे लगा कर वफा ब्लैक में होती खून में होती तो यूसुफ भी कभी भी मिस्र में गुलाम ना होता। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि जितने भी इंसानों से यानी एक मर्द से भी एक जिनका एक ही बाप है जमीन पर अगर उससे भी पैदा हुए हैं तो वो भी खूनी है। सिर्फ खूनी वो नहीं है जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है, और भाई से मोहब्बत कौन रखता है? जो खुदा से पैदा हुआ। सारे कहें हालेलुया, सारे कहें हालेलुया, सारे कहें हालेलुया। माँ बाप से पैदा होने वाले तो तेरी दलीलें हैं। अगर हम यीशु की बात करें तो वो यूसुफ की जान लेना चाहता था। अगर हम यूसुफ की बात करें तो उसके सारे भाई उसके दुश्मन से बेच दिया। और अगर हम कायन की बात करें तो उसने अपने माँ के और बाप के फर्जंद को कत्ल कर दिया। क्योंकि जितने भी खुदा से नहीं है वो सारे खूनी हैं। बेशक वो एक ही सुनत से क्यों ना पैदा हुए हो, बेशक वो एक ही मां से और एक ही बाप से पैदा ना हो, वो खूनी है। कहता जो मोहब्बत नहीं रखता अपने भाइयों से वो खूनी है। और इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद ज़ाहिर हो जाते हैं। कलाम शीशा दिखाता है कि कौन खूनी है और कौन खुदा का फर्जंद है। क्योंकि दुनिया में जितने भी फर्जंद हैं वक्त आने पर कहते नहीं अपने भरा वास्ते जान भी दे छड़ने हैं। कब जानो एक अपना एक याना हो एक बच्चा हो तो फिर कितने लोग जान देते हैं उन्हें सब वक्त हो जाए साडा गुजारा नहीं होते हैं। बन्ने के भरावां को कत्ल कर छड़ते हैं। एक एक बन्ने तो एक एक घर को कौन सी मोहब्बत है? खुदा की शुक्रगुजारी, दुनिया की मोहब्बत सदा जान लेती है। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है, खूनी है और खूनी है। और खूनी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। खूनी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। ये दिल की कहानियां नहीं है, लिख के खुदा ने दिया हुआ है ताकि सबको आईना दिखाया जाए कि कौन खूनी है और कौन मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया जी। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। खुदा की शुक्रगुजारी हो जिसके अंदर खुदा है, जिसके अंदर मोहब्बत है। यकीन जाने कि वो कभी खूनी नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत वाला बंदा मारने के लिए नहीं बल्कि किसी की खातिर मरने के लिए निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती नहीं है, कुर्बानी देती है। सारे के आगे और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। देखो पुठी गल कर छड़ी दुनिया में तो गल्ला बेवकूफी दी लग रही है ना। भरावां वास्ते चलो बंदा रोटी दे छे जान नहीं देनी। खुदा का कलाम कौन कबूल करेगा? कईयां ने पहला भी आख्या सी भाई ਇਹਦਾ कलाम ते है ना दुआरे ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कबूल करे। देखो ना सीधा भरावां वास्ते जान देना साडे ते भी फर्ज है, क्योंकि बड़े भरा ने दी है ना ये। हालेलुया। और अगर बड़े भाई ने दी है तो रसूल जो उस पर ईमान लाए हैं सिवाय यूहन्ना के कोई आरे से चीरा जा रहा है, कोई कड़ाहे में फेंका कि पता नहीं किस किस जगह पर उनको कुर्बान किया गया है। सबने कहा ना कि हमें भी अगर हमारे बड़े भाई ने जान दी है ना मोहब्बत में तो हम पर भी जान देना फर्ज है। पतरस रसूल को सूली देने लगे, उसने कहा नहीं, ये नहीं कि वो सूली पर चढ़ने से डरा था। कहता नहीं, मुझे उल्टी सूली चढ़ा दो, जहां मसीह यीशु के कदम थे वहां मेरा सर होना चाहिए। हमें मोहब्बत को इसी से जानना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी है। और अगर उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी है तो ये फर्ज है हम पर कि हम भी भाइयों के वास्ते अपनी जान दें। तो जान देते हैं। आज कैसी मोहब्बत है? अच्छा थोड़ा जब पहना जरा ना वो फिर भी काम थोड़ा ठीक सी कि जरा को दो चार फाती रोटियां सोच लो कोई नांदा जी आया आज तो सोच रहे छड़े आलू पकाए होते हैं जहाँ ये मेरा ताकि किसी का दिल ना करे। जब लेके ना किसी गोश्त पकाया है तो मंजी थले नहीं कर छड़े तो कुंडी मार के जी खाते हैं।
नहीं ऐसे कुंडी मार के कुत्ते को बुआ तो फटोफट कहानियां कुंडी करके नाल अद्धी बुरकी साडे अंदर रह जाती ते के सब कुछ मंजी का कर छड़ते क्योंकि हम आज तो हम साला नहीं दे सकते। पहले हमने अपनी आंखों से देखा कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर कोई मेहमान आ गया तो जिसके घर लस्सी होती थी वो कहता है लस्सी आज तुसी ले लो या दूध आज तुसी ले लो, लेकिन चीज भी छोड़ते नहीं। यानी कि लोग घरों में आते थे और देते थे क्योंकि मोहब्बत ज़ाहिर होती थी। लेकिन कहता कि हीर ज़माने में मोहब्बत नहीं बैठे। हालेलुया। तो तैयार हो गया अपने भाइयों के लिए जान देने को? हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ये तब होता है जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आती है। हालेलुया। कोई भी नहीं कब बेशक डायरेक्ट मार्केट मैं समान ते जाके ना तेरे वास्ते तारे तोड़ लेने तो घर जुत्ता उठा नहीं जाता, काम किया नहीं जाता। वो ना तेरी तारे तोड़ देते ने जिन्हें तक ब्याह नहीं होता। जो ब्याह हो जाता तो फिर दौड़ा ही तोड़ देंगे। नहीं ऐसी बात। एक वो अपना वो मैं फेसबुक पे देखा जाए एक वो कहते हैं कि मैं समान से जाकर तेरे वास्ते चाल तोड़ दिया। वो कहते हैं कि वो तेरा भला हो ये लोग ताले कहते हैं कहता कि तू बंदा जाए बड़ी शहर है। यानी सब कुछ बातों ही बातों में है, हकीकी चीज कोई नहीं है। ये है जान लेना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में डिले करे, जिसके पास दुनिया का माल हो और अपने भाई को देखकर देने में दरेग करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? उसके अंदर खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? कि माल है वो तो नहीं गया था तक भी नहीं, लोग अपना भैन भुखे बैठे ने, लेकिन वो अपने माल को संभाल के बैठा हुआ है। कहता क्यों कर खुदा की मोहब्बत उसमें कायम रह सकती है? जी बच्चों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं, कलाम और ज़बान से तारे ना तोड़े, चंद तोड़ के ना लाए। कहता कलाम और काम से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। काम और सच्चाई के अमल के वसीला से भी मोहब्बत करें। कि अगर कोई भूखा है तो उसको ये ना कहते जा शेर है रजिया है, लेकिन तो देखो रोटी हो दबो ना, ये केड़ी मोहब्बत है? मैं तेरे पीछे बैठ के बड़ियां दुआवां कीतियां ने कि मैं भी नहीं तैनूं दित्ती ते तैनूं होर दबे नहीं कोई नहीं। ये बात याद रखें, ये बात याद रखें और ये भी याद रखें कि मैंने वो लोग ज्यादातर कईयों को मैं कहता हूँ कि ये या फलां जगह पे उनकी जरूरत है और ये काम कर रहा है, कोई काम होता है कि ना कि देख कोई पकाता है, ठीक है देख कोई पकाता है तो जो मंडन वास्ते लाता है ना वो कोशिश वो आप बन जाता है। वो अपने रिश्तेदार में दो कोटियां पा के दूसरे जगह में कोटियां हो गई हैं। वो मंडन में भी जगह ना अब सब कुछ ऊपर से आता है, खुदा हमें देता है कहीं देखो मंडन नहीं सही थे दूसरे पर भाई कहते गरम छोड़ ले यार गरम क्यों छोड़ ले गरम तो अपने रिश्तेदार में सारा आगे सोच नहीं जी कहते हैं कहीं हम में गरम चोल मांगने मांगने तेरे प्लेटा का पांच में बाधा भी हो सेहत देने वाली कोई शय नहीं ऐसी होती है। कहता कलाम या काम सितारे तोड़ने की बातें ना करें, चांद तोड़ने की बातें ना करें। भाई तेरे को 10 रुपए ने चांद रहन दे उन बकर के ऊपर 10 रुपए दे काम से भी और अमल से भी ये जाहिर करें। हालेलुया हालेलुया। हाँ जिसके पास नहीं है वो ये कर सकता है कि वो किसी बहन भाई के लिए बैठ के दुआ कर सकता है। अगर नहीं है तो, लेकिन अगर है तो दुआ भी करे और अगर सपोर्ट कर सकता है तो उसकी सपोर्ट भी करे। हालेलुया। आज तक सपोर्ट भी नहीं कर सकता, अगर कोई किसी ने सपोर्ट करे ना तो लोग पता कि कहते नो हो कोई काम है जेड़ा उन्होंने पैसे देने वजह अंदर मोहब्बत नहीं, जिस्म के अंदर इंसान यही सोचता कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता।
खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि सिर्फ मोहब्बत वाला बंदा अपने हाथों में रुपया या रोटी या पानी लेकर अगले के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी जान भी हथेली पर रख कर फिर रहा है कि जिस तरह हमारे प्रभु ने, हमारे अच्छे दोस्त ने, यीशु ने जान दी है, अगर वक्त पड़े तो इन सब के लिए भी जान देना हम पर फर्ज है। हाथों वाले ताली बजा सकते हैं। आगे इससे हम जानेंगे कि हक के हैं, इससे हम अगर मोहब्बत रखेंगे तो फिर जानेंगे ना किसी हक ने। हक कौन है? यीशु मसीह ने कहा राह और हक और पहचान ही कोई नहीं है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी इसी से सब जानेंगे कि तुम मैंने शिविर दी। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु ने क्या मोहब्बत रखी है? हुक्म यही है अपनी जान दे करना, कहता जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से सब जानेंगे कि जान देने वाला और जान देकर जिंदगी बख्शने वाला सिर्फ एक ही कबीला है और वो यहोवा खुदा का कबीला है। दूसरा कोई हाथ नहीं है। हर कोई यीशु ने कहा मुझसे जितने भी पहले आए वो चोर और डाकू है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चोर कभी भी एक बुजुर्ग के लिए जरा कोट लगे समझे तो सही जा रहा है ना, ये ना सोच की है। तो मैं भी बोल गया था कि मैं भाई जिपे न जा दे पे कुछ नहीं दिया ते बिल फर्ज करते पे शेर है या कोई खतरनाक होता है तो की करोगे? कहना दौड़ दूंगा। अच्छा क्यों? कहना नहीं 15 रास्ते जान थोड़ा नहीं। तो यीशु ने पहले ही कहा मजदूर जान नहीं देता, वही जो भेड़ों का मालिक है। हालेलुया। सारे में हालेलुया। वही जो अच्छा चरवाहा है। और दाऊद अच्छा चरवाहा था, ठीक है। दाऊद पता शेर के आगे भी खड़ा हो जाता है, और जब खुदा ने देखा ना कि ये भेड़ों के लिए अपनी जान खतरों में डालता है, खुदा ने उसे भेड़ साला से उठाया और फिर उसे अपनी कौम का बादशाह बना दिया। हालेलुया। आज हम अच्छी तरह परखें, अपने आप को जानते कि हम शरीर से हैं या खुदा से। कड़ैसी से खुदा के फरजंद और अब्लीस के फरजंद ज़ाहिर होते हैं। हालेलुया हालेलुया। कि सब कुछ पढ़ो हाँ चौथे बाब की 7वीं आयत। ऐ अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हाँ जी क्यों? क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। जो कोई मोहब्बत रखता है वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है। और एक बंदा से गैरतमान बोलेंगे से 70,000 के अंदर इबादत करने ते वो गैरतमान बोले जान रहा है, बोली बड़ी मर्यादा सी वो पता नहीं काले ना, ठीक है। गैरतमान बोले जान रहा वो माई एक आंदे सी ते माइयां तो पता है लोग माइयां तो पढ़ने दिया और जब थोड़ी जी लगे तो उन्होंने गैरतमान वाले नु लग गई, उन्हें फटाफट खोली डॉक्टर से अगर मैं दुआ च ना होता तो मैं 10 साल की माई। यानी कि गैर ज़ुबान तो वो बोल रहा है, और इसका क्या मतलब है कि ये गैर ज़ुबान बोल नहीं है जो पाक रूह देता है, क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी गुलाम का ना मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। तो तुम एक माई का ठेका नहीं सह सके, तुम दुआ च ना करते तो माई मार छेड़ी सी, और हमें नहीं पता कि माई को मारता क्या है। वो जो शरीर से है कायम कत्ल कर सकता है, कायम कत्ल कर सकता है, यीशु कत्ल कर सकता है, याकूब के बेटे कत्ल कर सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो, लेकिन जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है वो कत्ल नहीं कर सकता, बल्कि वो सब कुछ सह लेता है। ये नहीं कि गैर ज़ुबान बोला भाई बदरूह के अंदर बोलती है, ये पहचान है
سے جو غیر زبان بولتے ہیں ان کے اندر بدروں میں غیر زبان بولتے نہیں، لیکن جس کے اندر خدا کے روح کی یہ نعمت ہے، خدا کی شکر گزاری ہو، وہ مائیوں کو ٹھوکرے نہیں لگاتا بلکہ مائیوں کو سنبھال لیتا ہے، بزرگوں کو سنبھالتا ہے. ہلیلویا. وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور اس بات کو جانتا ہے. اس سے پیدا ہوا ہے. خدا سے پیدا ہوا ہمیں ہے. ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ہم خدا سے ہیں، ہم خدا سے ہیں، ہم خدا سے ہیں. اگر ہمارے اندر محبت ہوگی تو کلام کہتا ہے، کلام میں پتہ کیا لکھا ہے کہ درخت اپنے یہ بہت بڑی پہچان ہے کس کی؟ جو خدا کا فرزند ہے. میں ناروال دے وچ بیٹھا تھا، بابا آدم بیٹھے تھے اور سارے دسن دے میرے کو نعمت شفا دی ہے، دوسری تیسری. میں چپ کر کے پاس بیٹھ نا اور روٹی رکھی تھی، میں راجا لائی جان دیا کیونکہ میں انہوں پتا ہی میں انہوں نے اتفاق ہی نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھائی جی تسی نہیں بولن دے. میں کہا یار دنیا کا تو ہی کرنے میں اتفاق نہیں کرنا. تسی کی میں کہا پھر تہاں سننا نہیں، میں کہا تہاں سننا نہیں تو میں روٹی لائی دکھا دوں. جی میں نے کہا کہ بالفرض کوئی ایمان کی بات بتا رہا ہے تو ایمان ایک انسان رکھتا ہے نا تو اس سے بڑا ایمان تو شیطان کا ہے. کلام کہتا ہے کوئی ایمان بھی رکھتا ہے تھر تھر کانپتا بھی ہے. کیا پہچانی؟ ایک تھر تھر کمپے کو بڑا ایماندار ہے. کیا پہچان ہے کہ یہ خدا کا یا نہیں؟ ایک نبوت کرتا ہے، نبوت کرنے سے تو تب پتہ چلے گا نا جب اس کی نبوت سچی ہو. نہیں تو نبوت سچی نبوتوں سے زیادہ جھوٹی نبوتیں لوگ کرتے ہیں. کیا پہچان ہے؟ روحوں کا امتیاز ہے. بڑے بڑے ایک خدا کو بڑا لوگ نے پرکھ لینے نے بڑا کہ یار بتایا گیا ہے ٹھیک بنا. میں نے کہا کیسے؟ اور تعلیم یافتہ کہنے نے تعلیم یافتہ صرف کرسچن ایسے کو کٹ پڑے ہیں، دوسری لوگ کو بہت زیادہ پڑھے. کون ہے؟ کیا پہچان ہوگی؟ شفا وہ بڑے بڑے لوگ جو بہت چھوٹے یار ہوتے اپنا مٹی چٹنے کا شفا پائیے. کوئی پہچان نہیں. خدا کی شکر کرے ساری چیزوں سے شفا ہو سکتی ہے لیکن کسی چیز سے محبت ظاہر نہیں ہوتی. روح القدس کے پھلوں کو دیکھ لیں گے تو کلام پتہ کیا کہتا ہے کہ پہلا پھل جو ہے وہ محبت ہے. اور پھر اگر آپ کرنتھیوں کے 13ویں باب کی آیات پڑھیں گے وہاں لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں لیکن اکثر ان میں محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے خدا محبت ہے. ہلیلویا. اور اگر خدا یعنی کہ اگر محبت ہمارے اندر ہوگی تو لوگ دور سے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ خدا کے فرزند. درخت اپنے اگر کسی کے اوپر پھل لگا ہو، بالفرض میں نے سیب کا درخت کبھی نہیں دیکھا، اور اگر کسی علاقے میں جاؤں تو کسی درخت کے اوپر سیب لگے ہوں تو میں دیکھ کر کیا کہوں گا؟ امرودہ کا درخت. میں اگر کہہ بھی چلا نا تو بھائی کو پاس امرودہ درخت ہے تو میں نے مجھے نہ کبھی اگر دیکھ کے لے پاس صاحب رہنے ہوں گے ویسے کہتے سے بعد درخت امرودہ نہیں لگنے. جی گل ہے بولو کہ سیب چلو تاک گئے آواز آ رہی نہیں بول چلو لگ سکتا ہے اپنا سیب کے درخت کے امرود جدے تو سیب ہو گے تسی کی کہو گے کہتا درخت. یعنی کہ اگر محبت ہوگی نا اصل محبت. میں خواہش کی بات کر رہا خواہش بھی بڑی. میں ناروال دے وچ کلام سناوا دے بارے کہندے ایک لڑکی ہے کہندے بھائی جی کو جدا سونا تو کلام سنایا. میں بڑا تو دیا وہ بات بولنا چاہتا ہوں. کہندے دیکھو نا کہاں محبت دا انہوں نے دسیا کہ میں بھی ہونا غیر قوم دے منڈے دے نال محبت کرਦੀ تو میرا ماں پیو سب ڈاک دیتا ہے. دیکھو تو آپ کتنے زور لا کے کہ محبت کرنی چاہیے. وہ سمجھ ہی لوگ اٹھا جاتے ہیں. میں کہ میرا پتر بھائی اپنے ذرا سمجھ ہوتے ہیں تو محبت نہیں کرنے دیں گے. تیرے جسم کی خواہش تیرے سے چڑھ گئی کیونکہ جسم کی خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جلتی ہے اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جڑا غیر قوم دے پیچھے پہ نہیں ہے نا تو بعد تواڈے کولوں گویا کہ پاندے نے تے جُتیاں صاف کراندے نے تے تانوں چوڑیاں کہندے نے. یہ میں بعد پڑھنا سے کوئی نہیں ہوتا تے ساڈے پاندے نے پھر او تو کہندے نو چوڑی لے کے آئے
یہ کسی نے غصہ بھی لگے بالکل ایسے نہیں کرنا. پھر وہاں ہوتے جا کے وہ ہاتھ میں مانا مسئلہ مان گیا. خداوند کی شکر گزاری ہو. میں جسم کی رہائش کی بات نہیں کر رہا, میں محبت کی بات کر رہا ہوں. ہلیلویا ہلیلویا. خداوند کی شکر. اگر بڑا سبق بولا تو خداوند کی شکر گزاری ہو کہ اس نے اسی وقت اس دوسرے کو سلوٹ کیا اور اپنے مطلب کے اندر شادی کر کے اب اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. ہلیلویا. جسم کی رہائش میں محبت میں فرق ہے. خداوند کی شکر گزاری ہو. اگر دنیا کی رہائش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ پتہ قائم رہے گا. ہلیلویا. تو کیا محبت ہے؟ نہیں پتا کیا محبت ہے کہ ہلیلویا ہلیلویا. ستنا پر آیا بندہ کہنا آئی لو یو. ستنا پر آیا بندہ وہ تجھے میں آئی لو یو کہتا ہے. غصے نہ پر آیا بندہ آئی لو یو کہتا ہے. سمجھ آئی لو یو کا مطلب کی ہے جی بول چلو وہ تو جانا پڑ سکتے نہیں ہے. میرا کمپیوٹر سے تیز چلتا ہے. شروع میں ٹائپنگ کی مشین سے کرنا دیا سب جھوٹ سب اترے. کیونکہ محبت کرنے سے پہلے محبت کو جاننا پڑے گا محبت ہے کیا. اور جب اندر خدا آتا ہے, محبت آتی ہے, تو خدا کی شکر گزاری ہو کہ پھر ہی کوئی محبت کو ڈلیور کر سکتا, محبت کر سکتا. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. ایک طرح سے محبت کرتے سر ہونا تھی جو خواہش ہونا تھے سر چڑھ گئی تو مر گیا تباہ ہو گیا. کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ مرتا نہیں نہ مارتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے. سارے کے ہلیلویا سارے کے ہلیلویا سارے کے ہلیلویا. دیکھو نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. رہنے رہے کہ نہیں بعد مجھے یاد کرا تو ہے کیا سن کہاں تو کوئی لے کے نہیں کرنا انجینئر محمد آدھو تو بھگا لوگ کے مارتے تھے. ایک ایک کال دے تو لا آج تو تیرا میرا مرن دور ہے اے محبت آنا. ٹھیک ہے موشنل ہونا ہے وہ تو آگے واسطے تو آگے واسطے پتہ نہیں میں کی کرتا ہوں. ٹھیک ہے گھر کی جانا ہے کی کر جانا کرتا بھی کچھ نہیں. ایک بندہ کہنا میں تیرے بغیر اچھا جی. ٹھیک ہے وہ جو لوگ جدائی ہوئی وہ 5-6 کو دیا تھا وہ کدی لاکھ جو سو ہوتے نہیں یار وہ تو کہنا کہ میرا کسی چیز کا دے نہیں کاٹ جاتا کہنا میں پریشانی میں تو پتہ نہیں کھان دیا یہ دنیا ماں بتا رہے دنیا دے. ٹھیک ہے خداوند کی شکر گزاری ہو کہ دنیا کی محبت مار ڈالتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. خداوند کی شکر گزاری ہو دنیا کو میں محبت ہے ہی نہیں کہنا محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی اور ٹھنڈی محبت ہے. ٹھیک ہے کتنی محبت ہے. ٹھیک ہے 10 جیاں فون کرنا 10 سال جیاں فون کرنا تو 10 سال کے نال ہی کہنا کہ میں تھوڑے واسطے فون کرتا نہیں ہے جی بات بولو نہیں کالا ہے بولو کہ تو کالا میلا ہے. جو کوئی محبت نہیں کرتا وہ ہونی ہے. ہونی یہ بات یاد رکھیں ہونی ہے. آگے پڑھے ہوئے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ دیکھو خدا کی شکر گزاری ہو جو غیر زبان بولتا ہو اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ خدا اس میں ہے, لیکن جو محبت سے بھرا ہوا ہو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یقیناً خدا اس کے اندر موجود ہے. ہاللویا ہاللویا. ہم نے کلام سے نہیں اب کام سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. جی جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی
तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। हालेलुया। सारे कहना हालेलुया। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो दुनिया क्या समझती है, हिस्स को, ख्वाहिश को हम मोहब्बत नहीं कहते, खुदा को मोहब्बत कहते हैं। तो दुनिया किसको मोहब्बत कहती है उससे हमें कोई गर्द नहीं है, क्योंकि हर चीज लफ्जों और जुमलों के अंदर कुचलने की कोशिश की जा रही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, आपकी पहचान ये है कि अगर आप असल और हकीकी मोहब्बत जिससे दुनिया की बेहतरी हो रही हो वो रखेंगे तो दुनिया खुद कहेगी कि ये खुदा से पैदा हुए हैं। जी आगे। और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कायम हो गई, आमीन। क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि उसमें कायम रहते हैं वो हम में। हालेलुया। हालेलुया। 19 आयत से पढ़ें। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। हालेलुया। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से दावत रखे तो झूठा है। नहीं ऐसे कहा। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से दुश्मनी रखे तो क्या है, हमारा क्या हाल है। हम सब अपने भाई बहनों से मोहब्बत रखते हैं। सोचिए अच्छी तरह। मैंने यकीन जाने कि बड़ी इस 28-29 सालों में बड़ा अच्छी तरह जांच परखा दुनिया सखियां भैना एक दूसरे दी खूनी ने होनी पक्की गल। अगर कोई कहना वे छोटी प्यारी सी है तो वड्डी 24 घंटे हाथ से तलवार रखी, मैं तो अपने दाचा हाथ सदना पड़ गया। ठीक है, मैं तो पिछले दिन में गुजरना ले सा तो माँ ने कहा है कि एक डिजाइन किया है मेरी वड्डी बेटी ने। ठीक है, तो छोटी यकीन करो ऊपर उन्हें घट कर उठी तो तोड़ गई। एड्डी खसत अंदर आ गई कि गल भी किसी एक तारीफ अपनी भैन की तारीफ भी नहीं सुनना चाहता। मैं कहा बाजी की होया देखे क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है कि बड़ी मैं तारीफ कर बैठी। अगर कोई एक भाई तरक्की करके 5 भाइयों में से तो सारे उसके क्रिश्चियन लोगों के अंदर सारे पीछे पे होते तो दूजे 40 जाकर हम कर दिया अम्मा बेहला होके के बदल गया तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਬਾਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਮਾਮਾ ਭੇਜਦੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੋਰਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ एक दूसरे को सुतन दे। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम पीछे बैठ के दुआ करो ना, वो आपको देगा नहीं तो आपसे रहेगा भी नहीं। ये मोहब्बत कैसी है कि सिर्फ सच पंजाब माँ प्यो स्कूल पढ़ता है वो जरा मेरा बच जाता माँ प्यो भी कहता है ले आओ मेरा मुंडा बदल गया की करे बदल लेना। वो सारे काले घर बैठे थे एक को बाहर छोड़ते दूसरे सारे नमे पै रहे थे एक को नौकरी करे दूसरा हिलता ही नहीं और जो करेगा तो वो क्या करेगा ठीक है भाई नहीं करना तो मैं किला क्लियर करना और बाद में वो दुश्मन हो जाता है। लोग बदल गए ये मैं मेरे तजर्बे के मुताबिक अमीर सारे ठीक है उन्होंने बेचारे के एक थोड़ा बढ़ जाए तो 25 बंदे की लाइन अगे लगी रहती है पीछे कि साड़ी मदद करो की करे कि करे उदों तक नहीं छाड़ते लोग नहीं तो कॉपी लैन से नहीं लगता। ये बात बिल्कुल पक्की है। जो फिर आंदा नहीं चाहे बड़ा अमीर से और गरीब हो गया फिर तरस खान क्यों लेते और तरसना कहो भाई काम करो तो तुझे की बात जाए। हालेलुया नहीं है ठीक है सारे अपने जाते कि मारे बंदे घर हो ना जो उन्होंने सोफा है उन्होंने छो दफा करो क्यों दफा करो भी क्यों तो नहीं नहीं दिया उसको बहुत सारे लोगों ने आग के छोड़ा हुआ है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिन्हें कर्जा चुक के छोटा लादार अपने भी बच्चे से फिर हार से उन्हें अपना घर भी बेच छड़िया घर बेच के घरों में कार किराए पर तोड़ के फिर बाहर तोड़ के पिछोड़ तोड़ गया उत्थे भी आके 20-25 लाख रुपया कर्जा चुक लिया वो पिछे जो भैन भरावां तोड़ना तो उन्होंने
साइड पे होना है, फिर क्या उन बदल के बदले नहीं है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसके बच्चे हैं, मावा में तुम्हारी मेहरबानी अगर सिखो चंगी तरह जिन्नियां मावा मिले तो जरा बद गया वैसे दुआ करो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੇ ਉਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो भी काम कर जाए। मावा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾ ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ जरा ठंडियां नहीं रहती। भाई बड़ा है उसके लिए शुक्रगुजारी करें कि आपने अपने बड़े बेटे को बढ़ते हुए देखा है, छोटों पे भी मेहनत करें ताकि वो भी बढ़े, लेकिन वो सुखियां अंदर नहीं आना है ना। हम कह रहे हैं 5,000 रुपया दे दे, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ खुशी की नहीं होती। मैं क्या अपने नहीं होती, मैं नहीं, अगर वो मेरे अपने हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे अपने फकीर ना हो, मांगने वाले ना हो, बल्कि देने वाले हो। हालेलुया। मैं मेरे ये कहता है कि मांगता ही नहीं कभी अपना अपनी उम्र नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो अपने जो होते हैं वो परवान चढ़ते हुए, अगर मोहब्बत है ना, मावा को मोहब्बत है ना, प्यो को मोहब्बत है, तकी कहने का मतलब एक बच्चा वो कहेंगे बद तो बद है सरफराज को। अगर असल मोहब्बत होगी तो हम दूसरों की सरफराजी को देखकर खुशी मनाएंगे, शादमानी करेंगे, दुआ करेंगे कि शुक्र है खुदा तेरा शुक्र। पास्टर अनवर फजल मेरे को पंजाबों से बह गया तो आपको खोते रेड़े क्यों नहीं चंगा लगना सी बह गया देखो बह रहा तो थोड़ी मेहरबानी वो फलाने पास्टर के को ज्यादा पेट है नहीं तो वो ही जो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਸੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ नहीं तो मोहब्बत तो रखे ना मैं चंगी तरह देखिए उन्होंने चर सारे असी अजे लगे हैं जिन्होंने तक पैसा नहीं तो पैसे आते ही लगता कि एक गल सच ठीक है जिन्हें को पैसे नहीं वो बड़ा सकता है देखो असं सादगी की जिंदगी बसर करते हैं तो जो पैसे आते तो सारा ना मूड बन जाता है नहीं यार करते कोई नहीं सब कुछ हो फिर भी हमारा मिजाज मसीह जैसा हो तो समझ लीजिए हम खुदा से पैदा हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। रब की शुक्रगुजारी हो। मैनू कई कह सकते भाई जी बिल्कुल तुम अजे सकते हो, मैं क्या मैं कर मुर्गी पा लेना कि सादा ठीक है हूँ मैंने सादे रह देना कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कहते हैं भाई जी देखो वो बैनी से ना पहला पालन च जाता है तैयार हो के आता है तो तुम भी आता है चलो उन्होंने ना बोल रहे वो आता है मैं यसू आगे नहीं टुट पैना अपना अपना स्टाइल है वो भी अच्छा करता है, साफ सुथरा होकर जाता है और गंदा तो मैं भी नहीं आता। असि सारे ने तारीफ कर सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। कभी है क्या देखा पाया कि यीशु कपड़े पाए होंगे ना जे तुम नहीं पसंद तो 50,000 रुपया दे पहला ब्रांड के दूसरी आगे पा रहा है वो मोहब्बत है ना। खुदावंद की शुक्रगुजारी हमारी मोहब्बत भी ऐसी है कि हम हर मोहब्बत रखने वाले को चुनिया पड़ते हैं। पहला दुआ करते हैं खुदाया मेरी भैन को बरकत दे, मेरी भैन को बरकत दे तो जो हम देख रहे हैं ना कि मुर्गी लेके जान नहीं कहते हैं मोहब्बत नाल एहो जी भैन भरावां नाल तो दुश्मन चंगे। हालेलुया। क्या आपको मुर्गी लेकर जाए फिर नहीं हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि नहीं। काम औखा पड़ा हमारा कोई रिश्तेदार मोटरसाइकिल नहीं ले सकता बोले को अगर पैसे होते वो आ जाते हैं वजह के पीछे मोहब्बत करने वाले बैठे हैं उनके दुआ कर बंदे हैं हसद लैके बैठे हैं ठीक। एक मिसाल तुहानू सिखाई गई कहते हैं कि एक बंदा कहता जो खुदा मैनू एक गड्डी दे खुदा ने कहता दे छड़ना तेरे भरा को दो देने नहीं
जो तू मंगना है तेरे मैं दान कर, लेकिन वो तेरे भरा को दो दान कर। वो सारी बात सोचता रह की करा मैं एक गड्डी मंगी, मेरे भरा दो मिल जाने और फिर कहता खुदा मेरे बूहे दे के खूह निकल आए, ताकि मेरे भरा ने बूहे के दो खूह हो निकलते हुए चली गए। हमारी ये मोहब्बत ऐसी ही है, खुदा की शुक्रगुजारी हो। ठीक है, काले बंदे की माला चिट्टे हो गए, तो चिट्टे बंदे क्यों नहीं रोशन होते? वजह क्योंकि उन्होंने पीछे सादे नहीं है सर, उन्होंने किसी ने क्या किया, आपका रंग कितना वाइट है, और जो दूसरे जिन्होंने थोड़ा कलेजी कलर का होता है वो सड़ पड़ जाते हैं। फिर क्रीमा चार चलन की क्यों खान साहब 10 कैप्सूल पार। ये क्या है, गोरा होती है सर किसी को नहीं, सिर्फ किताब है उधर नाल बात होना है। खुदा की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो, बंदे कंगी करके निकले ना गंजे बंदे के सामने, वो तो आपको कुछ भी नहीं करेगा। ये अभी ये जमाने में मेरे बड़े को मेरी बात यार खुदा को फ्रेश कर जगह ये लोग तस्लीम कर नहीं ऐसी बात, हर एक बात है ये शुक्रगुजारी करें, ये औलादी मोहब्बत है। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करोगे हैं? नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत करांगे कि देना करांगे वाकई नहीं जान देने का नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਦਾ ਬੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, मौत पर चले जाने जाना चाहिए, जिन्ना चर रहते हैं उन्ना चर इंजॉय करिए ना, क्योंकि होनी तो है नहीं है कि होनी औलाद को अच्छे से दाखिल नहीं हो सकती, पर वहाँ के दिल में है खुदा। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, अपने भाई से दावत रखे, तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी जिसे देखा उससे मोहब्बत नहीं है, तो जिसको देखा ही नहीं खुदा को कोई दावा करे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, कैसे? मैंने जो उनको कान के नजर आ रही उनको तो मोहब्बत रखे ना, ये आगे और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है, हुक्म की मिले सुने हो, हुक्म की मिले दी कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, वो अपने भाई से भी मोहब्बत वो रखे, अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। आगे जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, हाँ जी, वो खुदा से पैदा हुआ वो है, खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता और है, जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है, पहले मोहब्बत रखता है, और उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। उसकी बॉस की औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। सारे कहने हालेलुया। अगर इससे बाहर हो जाता है, इससे बिल्कुल बिल्कुल बाहर हो जाता है कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखते हैं। कैसे? कि जिनको देखा है उनसे मोहब्बत रखते हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी हो। ये पहचान है। मैंने बताया कि कौन इब्लीस के हैं, जो रास्ते के काम नहीं करते वो इब्लीस के हैं, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते वो इब्लीस से हैं, लेकिन जो अपने भाइयों से मोहब्बत करते हैं वो इब्लीस के नहीं हैं, वो यहोवा खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। सारे हालेलुया। वो यहोवा खुदा के फर्जंद हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो। हम किसी को अच्छी रोटी खाते देख नहीं सकते, अच्छा कपड़ा पहने हुए देख नहीं सकते, खुदा की शुक्रगुजारी अच्छी गाड़ी पर बैठे हुए देख नहीं सकते। ये मोहब्बत नहीं, हसद है। यकीन जाने के तो बहन ने 14 आदमों को मोटरसाइकिल ले ली। एक आदम मेरे पास आया, मैं कहते कि भाई जी बच्चे स्कूल छुट गया, मैं अपने बच्चों के 2 साइकिल दे ना मोटरसाइकिल दे जाओ। वो कहना मेरी नौकरी कोई नहीं, मैं कहते जिन्हें तक नौकरी कोई नहीं ना आके ना मेरे नाम कलाम शेयर कराया करो, 10-15 हज़ार मेरे को जितना हो करेगा मैं सारा दिया काम देख लिया। इतना सही होगा, इतना रहम दिल होगा,
मेरे मुंडे ने को आ गई शादी हम मान के चलो घर पैसा कोई नहीं लाते कम से कम उन्हें कमरे के तुसी टाइम लवा छो मैं कहा अच्छा फिर चलो क्योंकि वो जैसा है जोश जाके मैं ला सकते हैं बुलाए टाइम लवाए कोई बंदा कहना लाए कोई गोरा ला अच्छा गोरा के चला कहता ये पैसा किसी चंगे काम में भी लगना चाहिए दामन की शुक्र मैं अच्छा एक गोरा भी लग गया से किसी गोरे की फोटो में दिलवाई दामन की शुक्रगुजारी हमें गोरा कोई नहीं लगा हमें गोरों का बाप लगा होगा हालेलुया और जब मुझे जानते हैं हमें पता है कि साडी भी गैर पहुंची है नहीं उड़ा नहीं जिन्हें भी इधर गोरे आए ना उड़ा नहीं शुक्रगुजारी है ऐसा उड़ाना नहीं सुनिया एक बात याद रखें आप कलीसिया को भी पता है कि मैंने कहा इनको हदिया दे के भेजे और हमने जितनी हमारी कैपेसिटी ताकत है हमने जब पहली दफ़ा वो आया ना पार्टनर हमने उसे हदिया दिया तो रोना शुरू उसने कर दिया उसने कहा कि अगर मैं जुलूँ ना मैंने जेबियाँ हादी करवा शायद ठीक है ये नहीं बोलते 2-3 सूट चाहिए अपने पास 10,000 दिया था अपने साथियों को जितनी हमें तो थी वो रोना शुरू कर झुक कर वो दुआएं मांगता रहा तो पाकिस्तान की भी खुदा पर दमदा है जिन्होंने दे दिया ये बात याद रखो उसके बाद जितने भी गोरे आए हैं हमने खाना खिलाया सारे प्रोग्रामों के खर्चे किए हैं और हदिया दे के तोड़ा है दामन की शुक्रगुजारी हो कि हम मजदूर हैं गोरों के मजदूर नहीं हैं हम मजदूर हैं जिंदा यहोवा खुदा के तो हम मजदूरी करेंगे हालेलुया हालेलुया अगर मेरे तन पे जितने कपड़े हैं ना इनमें से मैंने कोई नहीं खरीदा हुआ ये खुदा ने मुहैया किया हुआ एक सोने की अंगूठी तो लेके सब कुछ बगैर हाथ लगाए बगैर कमाए अगर खुदा मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी अपने मुंह को कंट्रोल करना चाहिए और हमारे बदनों से कोई गोरा काला इज्जत और जलाल ना पाए बल्कि देने वाला ही सदा इज्जत और जलाल पाए हालेलुया उन्हें गोरे का हाथ चुक लिया ना तो ना मंगन वाले हो जाना फकीर हो जाना शुक्रगुजारी वो करे कि जिसके ऊपर देने वाले का हाथ है वो अपनी मुट्ठी खोलता है जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है हालेलुया हालेलुया आज केड़ा वे कि जेड़ा पेटी दे विच पैसे ओ काट कर मैं भरा दी मदद कर छड़े चूहे खा जाने मदद कैसे दी करा पक्की गल नहीं ये गल मैं देखिया कि तो माई तो कहते बोर्ड दे तो रिटायर हुई उन्हें पैसा अपने किसी पुत्र ने दे दिया नहीं मैं अपने बड़ा पैसे रखना अपने बड़ा बुढ़ी है बुढ़ी सी वो लेकिन मारते भी 20 साल आ गए ठीक है वो 20 साल आ गए वो पैसा जो माई मरी ने तो बड़े वो खुश हुए घर पे शुक्र अपना साले ने दौलत के लिए दुआ दी जो पैसे पड़े ने पुर गए पैसे चूहे खाए जाते ने किसी के काम नहीं आते कहता है सिर्फ रास्ते की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करें ताकि जब ये जाती रहे तो आसमानी मस्करों में आपको जगह मिले सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया सारे के हालेलुया ठीक है तो फिर की ऐसी सोच के जावांगे कहता है भाइयों हम आए हम एक दूसरे से हालेलुया एक दूसरे से रखेंगे या नहीं ये सारी मर्जी है कि जो हुक्म खुदावंद दिए और जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा हालेलुया हालेलुया अगर जो कोई अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं अगर मैं नारे मारते हैं ना मार के लोगों का फरिश्ते भी बोला कर छड़ते हैं हालेलुया हालेलुया वो दा बोला है ऐसे मानी बोली अगर मैं आदमी हूं और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं हां जी और मोहब्बत ना रखूं हां जी तो मैं ठठनाता भीतर या झंझनाती जहाज हूं हालेलुया ये मैं वो कहते हैं खाली पादा बोता खड़कता है जिस अंदर कुछ नहीं ना वो खड़केगा अंदर ठठनाता पीतल और जला के जाना जी आगे जी और अगर मुझे नबूवत मिले अगर मैं नबी हो जाऊं मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और जितने भी भेद हैं प्रकाश से हम का मुझे इल्म हो और कुल इल्म की वाकफियत हो सारे इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं भावे मैं कहा खुदावंद मैं तेरे नाल ते बदरूआ करनी आना बदरूआ ते तू कढ नहीं आने
लेकिन मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। आगे और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दो, अगर मैं गरीबों को माल को आशरा या अपना बदन जलाने को दे दो, अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। प्यारे का कहने जनाब, कोई ना हो गरीबों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हो। आज जिस गरीबों को पट्टियां के उत्ते जाते हैं ना, पट्टियां के उत्ते जाके डब्बे खड़ते हैं, पढ़ो जी वो खुआओ उन्होंने खुआ के नाल ही फोटोआं खिंचते भाई 50,000 देखो जी 5 लाख रुपये लगे। तो गरीब जिंदे ने पट्टियां के बहुते नसीब बन जाते हैं। साढ़े को आए ने साडी कोई मदद नहीं की थी। मदद तुहाडी की करनी है, तुसीं इन्ने बोले हो मेहनत करो, 2,500 की दिहाड़ी लगदे पे तो फिर भी फकीर बने हो, तुम शाही कहनो का फिर खाओ। दाम की शुक्रगुजारी, एक 2 पुत्र एक प्यो, भट्ठे ते लगे 7500 रुपए की दिहाड़ी लग हिसाब किया 2 लाख ते 25,000 रुपया वो कमान देने महीने का, वो भी आस ला के बैठे ने कि वो आए तो सानू दवे। लानत पाओ ऐसे पैसे अंदर, ऐसे रोक एटीट्यूड का 24 घंटे फकीरी जाओ नारियां कटो, लेकिन किसी के हाथ आगे खाद ना फैलाओ, क्योंकि आप व्यूज गैरतमंद खुदा के बेटे और बेटियां हैं। थोड़ा प्यार से खा ले, नमक मर्जी से खा ले, लेकिन हाथ ना फैलाएं। अगर हाथ फैलाना ही है तो उसके आगे फैलाएं जो कभी किसी को देकर जितलाता नहीं है, बल्कि सबको प्यारे के साथ देता है। जब देने की बात आई तो उसने मोहब्बत में अपना बेटा बख्श दिया, और कौन सी चीजें बात रखे। हालेलुया हालेलुया। बस 24 घंटे इंसानों में इतना मलाम है आदमी जो आदमी पर तवक्कल करता है, लेकिन वो वालिद वो है जिसका तवक्कल यहोवा खुदा पर है। जे गैरतमंद खुदा दे गैरतमंद बच्चे कोठियां ते के साडियां लैना लगियां, एक पाप पूरी लैन वास्ते ਅਸੀਂ पूरा दिहाड़ी खलो रहे हैं, और पूरा साल कटे को 2 दिन काट लो। फल अंदर हो गया ना, ड्यूटी अंदर हो गई तो पता चलेगा गैरतमंद खुदा के बच्चे कोई नहीं है। जब तक नहीं मिलिया ऐसे घट खा ली कोई प्रॉब्लम नहीं। बादशाह भी जब मुश्किल में फंसते हैं तो फलियां खा के गुजारा करते हैं। हालेलुया। आप सबका कद काट बहुत बड़ा है, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद हैं। अगर अंदर मोहब्बत है तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। पढ़ो जी, मोहब्बत साबित है, मोहब्बत की है साबित है। जरा भी सब्र नहीं करते, थोड़ा सा सब्र करें, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, आप सबके सरों के ऊपर जिंदगी का ताज सजाया जाएगा। यहाँ तकलीफ है तो तकलीफ रहेगी नहीं, एक दिन हमारी आंखों के सारे अंश खुदा पहुंच रहेगा। फिर होगा असल एटीट्यूड खुदा के लोगों का, असल जलाल होगा खुदा के लोगों का, आपका असल रोह ऊपर के सामने आएगा, और आपको ऐसा नूर ऐसा जलाली चेहरा मिलेगा कि गरीबों के खर्चे रुक जाएंगे। ये बात पक्की है, कोई गरीब नहीं देगा तो ये चमक भी नहीं काट होएगी। हालेलुया। सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी जो यीशु आएगा, क्योंकि यीशु ने आकर हमें अपना जलाल बख्शा। जी सर, मोहब्बत साबित है और मेहरबान। मोहब्बत साबर है, साथ क्या है? मेहरबान। जी मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत है हसद नहीं करती। हम हसद नहीं करते। अगर खाते हैं तो थोड़ी मेहरबानी मर जाना सारे हैं, ये पक्की बात है। कटो हसद बात पता कि यीशु मसीह को आगे लगा मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है, और मुझे अपना मार देने का भी छोड़ देने का भी इख्तियार है। यीशु ने क्या काम कहा, अगर तुझे ऊपर से ना मिला तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार है। जब किसी का देखते हैं कि ये सरफराज हो रहा है तो समझ लीजिए इसे सरफराज करने वाला खुदा है, इसलिए इसके लिए कोई नामुनासिब अल्फाज न कहें। अगर ये बढ़ रहा है, सरफराज हो रहा है, तो हम इसके लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और आप जैसा कोई भी नहीं है। आपकी जो आपकी ये लकीरें हैं ना, इससे आप जिते तो गल लगनी है तो ये लगनी है, दूसरे दिन नहीं लग सकती। इसलिए हसद करने की जरूरत नहीं है। कई बार कहते हैं उन्होंने साड़ी जगह ले ली, कोई किसी की जगह नहीं छीन सकता, ले सकता। यदि तुम्हारी जगह तुम्हारा मुद्दा लगना तो तुम्हारे लग रहे, इन चीजों को निकाल दे बाहर। आपका सरफराज करने वाला, बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। आप सबको खुदा ने एक अजीम कौम बनाया। आपके अंदर मसीह के फल होने चाहिए, आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, ख्वाहिश मैं नहीं कह रहा, जिस्म की ख्वाहिश मैं नहीं कह रहा। जिस्म की ख्वाहिश मामला होकर गुनाह को जनती है। हालेलुया। क्या हुक्म है कि एक दूसरे से आज अपनी कोई माँ से नाराज है तो खुदा का हुक्म दिया है। आप बाप से नाराज है, भाइयों से नाराज है, तो आज यहाँ से फैसला करके गए कि आज मुझे जैसे भी मनाना पड़े मैं मना लूँगा। एक दफ़ा जाकर मनाए, आपकी कुर्बानियाँ रुक जाती हैं। कहता भाई जो तो कुर्बान करके जाए ना चर्च च, तेन याद आए कि मेरे भरा तो मैंने कुछ शिकायत है तो छड़ दे कुर्बानी, पहले जाके भरा का मिलाप करता कि तेरी कुर्बानी कबूल होए। हालेलुया। ਅਸੀਂ 70 लोगों ने नाराजगी पा के आगे बैठ जाते हैं। अगर आप बार बार जाएंगे कोई नाराज ना भी ना हो, ना भी सुना करे तो ना करे, कम से कम आपका दिल तो साफ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कर लो हाँ सॉरी, चलो मैं जिन्हें बैठे रहते अगर कोई नाराज हो जाए तो ਅਸੀਂ सॉरी करते सॉरी मेरा कद तो नहीं छोटा आया, वो है कद छोटा, कद किसी का छोटा नहीं होता। सॉरी करने से कम हम बड़े नहीं अपनी नज़र में हुए। खुदा की शुक्र ये बात याद रहे, जो अपने आप का छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाए। बजाने ताली में ऐसा क्या सीखे कि वो कम मिलेगा जी एक दूसरे से। हालेलुया। उन बरादरी में कुछ बरादरी ब्रदर जो बरादरी निकली है, बरादरियां क्या है मोहब्बत। हालेलुया। ये भी नहीं करती, माँ भी नहीं करती, प्यो भी नहीं करता, पुत्र भी नहीं करता, सारे अंजला का खुद गर्जी ना लोग भरे। खुदा करे आज के कलाम की वजह से हमारी जिंदगी बदल।